ہیڈلائنز اپنے جانی بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں باغوں کے شہر میں فضائی آلودگی کا راج. شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 350 ریکارڈ کی گئی. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ مبین حیدر سے. مبین بتائیے گا. بالکل موسم کی اگر بات کریں تو موسم سردیوں کی طرف تو گامزن نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھا کہ اسموگ نے دوبارہ سے شہر لاہور کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے. آج بھی شہر لاہور میں اسموگ کی اوسط شرح اس میں اچھی خاصی جو ہے وہ اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے. جو اوسط شرح اس وقت جو ہے وہ تقریباً 350 کے قریب ریکارڈ کی گئی ہے. شہر کے کچھ علاقوں کے اندر تو اسموگ کی جو شرح ہے وہ 500 سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ ان ہائیجینک اور ان ہیلدی جو ہے وہ قرار دی گئی ہے. اور کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ اسموگ جو ہے یہ پھیپھڑوں کا کینسر کا باعث بنتی ہے، سانس کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے، آنکھوں کی بیماری کا باعث بنتی ہے، اسی کے دیگر امراض اس سے ملحقہ ہیں. تو کہ اسموگ سے بچاؤ کے بار بار جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اسموگ سے بچانے کے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر لازمی عمل پیرا ہوں، جس میں آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، آنکھوں کو ڈھانپ کر رکھیں، واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں تاکہ اسموگ کے زیادہ سے زیادہ جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ آپ پہ کم سے کم اثر ہوں. اور اگر ہم بات کریں موسم میں درجہ حرارت کی تو درجہ حرارت کنسسٹنٹلی کچھ عرصے سے اسی طرح سے جاری ہے کہ رات کے اوقات میں درجہ حرارت جو ہے وہ 19 یا 18 تک نیچے آ جاتا ہے، جبکہ دوپہر کے اوقات میں جو ہے وہ تقریباً 30 یا 31 تک ریکارڈ کیا جاتا ہے. آج بھی صورتحال ہے، کم سے کم درجہ حرارت جو 19 کے زیادہ سے زیادہ جو دوپہر کے اوقات تک تقریباً 30 سے 31 تک جانے کے امکان ظاہر کیے گئے ہیں. تو اسی طرح صورتحال برقرار رہے گی. بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا. بتایا گیا ہے کہ جب تک بارشیں نہیں ہوتی اسموگ کی بھی کنڈیشن نہیں رہے گی اور ٹیمپریچر بھی تقریباً کنسسٹنٹلی اسی طرح سے چلتا رہے گا. جب تک بارش نہیں ہو جاتی، یہ خشک موسم چل رہا ہے، تو کوشش کریں کہ پریکاشن میئرز کو لازمی ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ جو منفی اثرات ہیں موسم کے اور جو سیزنل بیماریاں اس موسم میں لاحق ہوتی ہیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، اس سے خود کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھ سکیں. جی شکریہ مبین آپ کا. اسموگ کی شدت بڑھنے لگی، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سانس کی بیماری، دمہ اور دل کے مریضوں کو احتیاط کی ضرورت ہے. گھر سے ماسک پہنے بغیر نہ نکلیں. اسموگ ایکسپرٹس نے گاڑیوں اور دھوئیں کے خلاف سمارٹ لاک ڈاؤن کی سفارش کر دی ہے. تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. کوالٹی انڈیکس کے لحاظ سے لاہور پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شمار ہونے لگا. لاہور میں آلودگی کی سب سے بڑی وجہ گاڑیاں اور صنعتی دھواں بتایا جاتا ہے. اسموگ ایکسپرٹ کنسلٹنٹ آف میڈیسن ڈاکٹر سلمان کاظمی کا کہنا ہے کہ حکومت سمارٹ لاک ڈاؤن لگائے اور شہری گھروں سے ماسک پہن کر نکلیں. ایئر کوالٹی انڈیکس بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ آہستہ آہستہ ہمیں شاید ہیلتھ ایمرجنسی لگانی پڑے اور اسکول بھی بند کرنا پڑے اگر یہ زیادہ بڑھ گیا اور انڈیا کی طرف سے دھواں پاکستان میں انٹر ہو گیا. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ناک کان گلے کی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں، دمے کے اٹیک ہو سکتے ہیں، لوگوں کو آنکھوں میں اریٹیشن ہونے شروع ہو چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر لوگ ناک جو ہے وہ بار بار ٹیشو پیپروں سے صاف کر رہے ہیں. یہ سارا اسموگ کی وجہ سے ہو رہا ہے. دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے اسموگ کی شدت کے بارے میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نومبر اور دسمبر میں شدید اسموگ آنے کے خطرات موجود ہیں. اس لیے دمہ، سانس کی بیماری اور دل کے مریض اسموگ میں ماسک پہنے بغیر گھروں سے نہ نکلیں. اس کے ساتھ ساتھ بچے اور ضعیف افراد بھی اسموگ سے بچنے کے لیے احتیاط کریں. حکومت پنجاب کی جانب سے اسموگ گنز کی خریداری کے باوجود اسموگ کے پنجے مزید مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں، جس کے لیے حکومتی سطح پر سخت اقدامات اور فیصلوں کی ضرورت پڑے گی. کیمرامین عدنان کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز. شہر میں ٹریفک کی آلودگی اسموگ کا بڑا جزو بن چکا ہے. کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان کہتی ہیں سب کو اسموگ کنٹرول کرنے میں تعاون کرنا ہوگا. امید ہے اگلے سال تک اسموگ پر کنٹرول پانے میں کامیاب ہوں گے. لاہور ڈویژن مریم خان کا کہنا ہے اسموگ ایک آفریت ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسموگ کے حوالے سے پیشگی حکمت مرتب کی. چیف منسٹر پنجاب اور جو ہماری منسٹر ہیں، سینئر منسٹر ہیں، جن کو جو انوائرمنٹ کا بھی پورٹ فولیو انہی کی لیڈرشپ میں ہے، ان لوگوں نے ایک پچھلے سال سے اپنے لیسنس لرن کرتے ہوئے ایک پریمپٹیو اسٹریٹجی ڈیزائن کی ہے، جس میں ہم نے اس میں جو ہمارا HR ہے، جو ہماری اکوپمنٹ ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کو اس کے اندر امبیڈ کیا ہے. کمشنر لاہور کا مزید کہنا ہے انسداد اسموگ کے لیے بروقت بھٹوں، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور صنعتی یونٹس کے خلاف بروقت کاروائیاں جاری ہیں. ویل ان ٹائم جو ہمارے ایکشنز تھے، چاہے وہ کنسٹرکشن سائٹ ہو، چاہے وہ برکلن ہو، چاہے وہ انڈسٹریل یونٹ ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ پائرولسس پلانٹس ہو، یو نیم اٹ، ہمارے ایکشنز سنس لاسٹ آلموسٹ جو گیئر اپ کیے ہیں، چلتے تو اراؤنڈ دا گیئر ہیں،
वो गियर अब हमारे तकरीबन पिछले 1.5 से 2 महीने से हम कर चुके हुए हैं। हुकूमत स्मोक में कमी के लिए ठोस इकदाम जारी रखे, शहरियों को आगाही दे तो लाहौर को स्मोक फ्री जोन बनाया जा सकता है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। स्मोक पर काबू पाने के इकदाम में तेजी, धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ शिकंजा सख्त, हजारों गाड़ियां बंद, दर्जनों गिरफ्तारियां और करोड़ों के जुर्माने। बिलाल अकबर खान की हिदायत पर 24 घंटे ऑपरेशन जारी है। के खात्मे के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का क्रैकडाउन तेज, धुआं छोड़ती और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ गैर मामूली कार्रवाइयां जारी। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान का कहना था कि स्मोक का रोग जड़ से उखाड़ने के लिए पंजाब हुकूमत हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। रवां साल अब तक सिर्फ लाहौर में 90,000 से जायद गाड़ियों का व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम स्टेशन पर मुआयना किया गया। 55,000 गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए गए। 8,000 से जायद गाड़ियों को धुआं छोड़ने पर चालान किया गया। 5,500 से जायद गाड़ियां बंद की गयी। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली 3,500 गाड़ियां भी बंद की गयी। ओवरलोडिंग में मुलव्विस 14,000 से जायद गाड़ियों के चालान किए गए। मजमूई तौर पर 8 करोड़ 50 लाख रुपए के जुर्माने आयद हुए। कार्रवाइयों के दौरान 2200 गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, जबकि 1800 ड्राइवर्स और मालिकान को गिरफ्तार किया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब ने धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ 24 घंटे ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत दी है। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की कनेट कॉलेज में खसूसी नशिस्त तलबा से खिताब में बोली, हमें स्मोक की वजूहात का खात्मा करना होगा। स्मोक की वजह से कारोबार जिंदगी शदीद मुतासिर होती है। हुकूमत स्मोक से निपटने के लिए अमली इकदाम कर रही है। ईंटों के भट्टों को जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। पंजाब की तारीख में पहली बार प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई। All the multi-sectoral squads are equipped with equipment, with technology, with all the gadgets that the modern world has used for eradicating the bad air quality. ये सब वो है जो गवर्नमेंट कर रही है, और गवर्नमेंट पॉलिसी दे सकती है, गवर्नमेंट अवेयरनेस कर सकती है, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी दे सकती है, गवर्नमेंट डेटा दे सकती है, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कर सकती है, इन्फोर्समेंट कर सकती है। लेकिन अनलेस वी चेंज, अनलेस पीपल चेंज, सिटीजन्स चेंज, इंडस्ट्रियलिस्ट चेंज, फार्मर्स चेंज, ये जितना आपको मल्टी सेक्टोरल कैनवस अभी मैंने आपको दिखाया है, जब तक हमने नहीं चेंज होना, नथिंग विल चेंज। अगर कोई किसी का फार्म है, उसकी कंप्लायंस क्या है, ट्रांसपोर्ट की कंप्लायंस क्या है, किसी की कंस्ट्रक्शन साइट है तो वो क्या कंप्लायंस करे, इससे ज़्यादा गवर्नमेंट में कुछ नहीं हो सकता। टू बी ऑनेस्ट, स्मोक गन ज़्यादा आ जाएंगी, ड्रोन कैमरेज हम ज़्यादा ले लेंगे, ईपीएफ फोर्स हमने लाहौर में अबाउट 650 लोग हैं, पूरे पंजाब में 1000 करने लगे हैं, और कर लेंगे। भट्टे गिराने वाले लोग और रख लेंगे। एज एन एनवायरमेंट प्रैक्टिशनर who's has a humble experience in all of this, जिन नेशंस ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी माहौल को चेंज किया, अपनी इन्वायरमेंट को चेंज किया, अपनी एयर क्वालिटी को बेहतर किया, वो सिर्फ सिटीजन्स चेंज से हुआ है। सो यू ऑल बिकम एम्बेसडर ऑफ दिस चेंज टुडे। अदरवाइज आप घर जाएंगे और इतने मामलात होंगे, आप उसमें बिजी हो जाएंगे, आपकी अपनी क्लासेस हैं, आपकी अपनी करियर पैटर्न है, आपका एक अपना कॉलेज के वो हैं, तो ये सारी चीज़ों में ये कॉन्वर्सेशन जो है वो भूल जाते हैं लोग। अब शेयर लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त, प्याज 120, टमाटर 400, लहसुन 600, अदरक 850 रुपये में दस्तियाब, सेब 450, मौसमी 280, अंगूर 680, जापानी फल 260 रुपये किलो में फरोख्त हो रहे हैं। आपको पता है महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी रेट लिस्ट के बरअक्स महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। प्याज 120, टमाटर 400, लहसुन 600, अदरक 850 रुपये में दस्तियाब, सेब 450, मौसमी 280, अंगूर 680, जापानी फल 260 रुपये किलो में फरोख्त। महंगाई माफिया का राज बरकरार। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी रेट लिस्ट के बरअक्स महंगे दामों फरोख्त।
प्याज 120, टमाटर 400, लहसुन 600, अदरक 850 रुपए में दस्तयाब, सेब 450, मौसमी 280, अंगूर 680, जापानी फल 260 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। आपको बताएं, महंगाई के हवाले से महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी रेट लिस्ट के बरअक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। प्याज 120, टमाटर 400, लहसुन 600, अदरक 850 रुपए में दस्तयाब, सेब 450, मौसमी 280, अंगूर 680, जापानी फल 260 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। आपको बताते चले, महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी रेट के बरअक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। प्याज 120, टमाटर 400, लहसुन 600, अदरक 850 रुपए में दस्तयाब, सेब 450, मौसमी 280, अंगूर 680, जापानी फल 260 रुपए किलो में फरोख्त। महंगाई माफिया का राज बरकरार। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी रेट लिस्ट के बरअक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, तो सब्जियों की सरकारी रेट लिस्ट में मजमूई तौर पर 2 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। दीगर सब्जियों की कीमतें जो है मुस्तहकम रखी गई हैं। ताहम ये इस्तेहकाम सिर्फ रेल लिस्ट तक है, क्योंकि ओपन मार्केट में रेल लिस्टों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और इजाफी कीमतें जो है वो वसूल की जा रही हैं। प्याज 93 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। ये दर्जा अव्वल के प्याज की कीमत है, लेकिन मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल का प्याज फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 185 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में 350 से 400 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल का टमाटर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मिक्स दर्जे का टमाटर जो है 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। लहसुन 410 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक 640 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया और मार्केट में अदरक भी महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। 800 से 850 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लीमू 10 रुपए महंगा करके 90 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में लीमू 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो टींडे देसी 200 के बरक्स 300, जबकि आलू जो है 85 के बरक्स 120 रुपए फी किलो तक। खीरा 10 रुपए महंगा करके 130 रुपए मुकर्रर किया गया। इसके बरक्स मार्केट में 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला जो करेले हैं वो 120 रुपए मुकर्रर किए गए। मार्केट में 180 से 200 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल के केले, जबकि मिक्स करेले जो हैं वो 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों की सरकारी रेंज में भी 2 फल महंगे किए गए। सेब काला कोल्हू 340 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में दर्जा अव्वल का यही सेब 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी 160 रुपए दर्जन मुकर्रर की गई है। मार्केट में 280 रुपए दर्जन तक फरोख्त की जा रही है। अंगूर सुंदरखानी 30 रुपए महंगा करके 560 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 650 से 680 रुपए फी किलो तक अंगूर सुंदरखानी जो है फरोख्त किया जा रहा है। और पपीता 250 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शकरकंदी 5 रुपए महंगी करके 105 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में 200 से 250 रुपए फी किलो तक शकरकंदी की फरोख्त की जा रही है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है मार्केट में महंगे दामों फरोख्त किए जाने, सरकारी नीतियों के इजरा के बावजूद इन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को अहकामात भी जारी। फैसला वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में हुआ। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला ने पाबंदी लगाने की समरी पेश की। वफाकी काबीना मुतफ़िक़ा तौर पर इस नतीजे पर पहुंची कि TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इजलास तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना में पेश की। इजलास में हुकूमत पंजाब के आला अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। काबीना को मुल्क में TLP की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरअंगेजी को हवा दी। तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरअंगेजी के वाक़यात हुए, जिसकी वजह 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी भी है। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ बहक हुए। पूरे एक्शन 28 असला डीलर्स के लाइसेंस मनसूख। जाली डीलर्स की दुकानें सरबमोर। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। असला की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है।
महकमे दाखिला पंजाब गैर कानूनी असले के खिलाफ इन एक्शन 28 असलह डीलर्स के लाइसेंस मनसूख, जाली डीलर्स की दुकानें सरबा मोहर। कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया। महकमे दाखिला पंजाब भर के असलह डीलर्स की तस्दीक कर रहा है। पंजाब में 511 असलह डीलर्स ने लाइसेंस की तौसीक के लिए दरखास्त दी। मुकम्मल स्क्रूटनी के बाद 393 असलह डीलर्स के लाइसेंसों की तस्दीक, ग्रीन सर्टिफिकेट जारी। 90 असलह डीलर्स के कागजात की स्क्रूटनी जारी। 44 असलह डीलर्स की समात मुकम्मल। 46 असलह डीलर्स की समात जल्द मुकम्मल हो जाएगी। महकमा दाखिला ने सूबे भर में असलह डीलर्स की डिजिटल रजिस्ट्रेशन का अमल भी तेज कर दिया। महकमा दाखिला गैर कानूनी असले की निशानदही और बाजियाबी के लिए मुतहरिक है। पंजाब भर में असलह लाइसेंसेस की तफसीलात भी जारी। पंजाब में 10,12,454 अफराद के पास इनफरादी असलह लाइसेंस मौजूद हैं। सिक्योरिटी कंपनियों के लिए 37,918 असलह लाइसेंसेस जारी किए गए। मुख्तलिफ इदारों के नाम पर रजिस्टर्ड असलह लाइसेंसेस की तादाद 42,272 है। पंजाब में असलह लाइसेंसेस की मजमूई तादाद 10,92,644 है। असलह लाइसेंस का तमाम रिकॉर्ड नादरा की मदद से ऑनलाइन किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक अप्रैल 2024 से इनफरादी असलह लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी है। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज है। अब कोई नया असलह लाइसेंस जारी नहीं होगा। 28 असलह डीलर्स के लाइसेंस मनसूख। जिन डीलर्स के पास लाइसेंस नहीं था उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबे का अमन खराब करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। पंजाब में जो है वो दफ़ा 144 जो है उसको नाफिज किया गया है और किसी भी धरना इज्तिमा इसके ऊपर पाबंदी है। कोई नया ना असलह लाइसेंस जारी होगा और ना ही असलहे को या डाला कल्चर को या ये जो एक बदमाशी वाला एक एलिमेंट होता है कि आप जो है वो लोगों को तंग करते हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 28 असलहा डीलर्स जो हैं उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं और कुछ जाली डीलर्स जो जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं। ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है जी इस असलहे की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से। और जैसे मैंने गुजारिश की थी, कोई नया ना असलहा लाइसेंस जारी होगा और ना ही असलहे को या डाला कल्चर को या ये जो एक बदमाशी वाला एक एलिमेंट होता है कि आप जो है वो लोगों को तंग करते हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब असम्बली से अपोजिशन जमात के अरकान की मुअत्तली का मामला। अरकान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के 3 मुअत्तल अरकान को बहाल कर दिया। अपोजिशन के 3 अरकान मियाँ इजाज शफी, इम्तियाज़ महमूद शेख और खालिद ज़ुबैर निसार को 15 सेशन के लिए मुअत्तल किया गया था। तहरीक इंसाफ के अरकान ने मुअत्तली के खिलाफ हाई कोर्ट से भी रजू कर रखा था। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की तंजीम एब्सब के ज़ेर एहतमाम अहम कौमी आगाही सेमिनार का इनकाद। मुख्तलिफ शोबा हयात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, माहिरीन तालीम और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद ने गवर्नेंस मॉडल को बेहतर करने के लिए ख़ुसूसी लेक्चर दिया। 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान की मुल्कगीर आगाही मुहिम के सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर में खुसूसी सेशन हुआ। खुसूसी सेशन में सरबराह पलडाड अहमद बिलाल महबूब, माहिर सियासी उमूर डॉक्टर इश्तियाक अहमद, माहिर कानून अहमद नजीर वड़ाइच समेत दीगर अहम शख्सियात भी शरीक हुई। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद ने खिताब करते हुए कहा, तमाम मुमालिक में विफाक, सूबे और मकामी सतह पर हुकूमतें बनती हैं। हमें मकामी हुकूमत बहुत कम देखने को मिली। जमहूरियत जब भी आती है लोकल गवर्नमेंट खत्म कर दी जाती है। अगर आप गवर्नेंस को देखें तो ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में 3 टियर गवर्नेंस बनी। एक फेडरल लेवल पे, फिर प्रोविंशियल लेवल पे एंड देन द लोकल गवर्नमेंट। ये 2 टियर हैं जो हुकूमत करने के लिए हैं और तीसरा टियर है जो खिदमत करने के लिए है, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। वो हमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बड़े कम मौकों में देखने में मिली। जब भी कोई जमहूरी हुकूमत मुल्क में आती है तो सबसे पहले
लोकल गवर्नमेंट खत्म की जाती है। मियां आमिर महमूद ने कहा, पहली मर्दमशुमारी हुई तो आबादी 3.25 करोड़ थी, आज हम 25 करोड़ का मुल्क हैं। पहली मर्दमशुमारी के वक्त 4 सूबे थे, अब भी 4 हैं। मियां आमिर महमूद का कहना था, नए सूबों की डिमांड बड़ी देर से हो रही है। बात की जाती है कि साउथ पंजाब को सूबा बना दे, लेकिन डीजी खान अलग, बहावलपुर अलग सूबा बनना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हर डिवीजन को सूबा बना दें, क्योंकि सब की बाउंड्रीज पहले से ही मौजूद हैं। अगर हम नई बाउंड्रीज के तायुन में जाएं तो इसी झगड़े में जिंदगी गुजर जाएगी। डिवीजन में पहले ही पूरी गवर्नमेंट मौजूद है, इससे अखराजात बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम हो जाएंगे। कहीं पे साउथ पंजाब की कोई डिमांड नहीं है। डीजी खान बिल्कुल मुल्तान के साथ सूबा बनना नहीं चाहता। वो कहता है जी अगर हमने मुल्तान की गुलामी करनी है तो लाहौर की ज्यादा बेहतर। डीजी खान अलग सूबा बनना चाहता है, मुल्तान अलग सूबा बनना चाहता है, बहावलपुर तो शुरू से अलग सूबा बनना चाहता है। हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप हर डिवीजन को सूबा बना। पाकिस्तान में 33 के करीब आपके सूबे बनेंगे। क्यों हम कहते हैं कि डिवीजन को बना दें? कि इसकी बाउंड्रीज डिफाइंड हैं। अगर आज हम नए सूबे बनाएं और नई बाउंड्रीज के तायुन में जाएं तो इसी झगड़े में हमारी उम्र गुजर जाएगी। डिवीजन्स ऐसी मैनेजेबल चीज है और इसमें पूरी गवर्नमेंट मौजूद है। जो सबसे ज्यादा कंसर्न लोगों में मिलता है देखने को, वो ये होता है कि ये बहुत महंगे हो जाएंगे। बढ़ने की बजाय हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। सेशन में गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन पिलडाट अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि मियां आमिर महमूद की काविश को कदर की निगाह से देखता हूं कि वो सिर्फ जुबानी बात नहीं कर रहे बल्कि तफसील के साथ इशू को सामने ला रहे हैं। मैं आमिर महमूद साहब की इस काविश को इसलिए बहुत कदर की निगाह से देखता हूं कि इन्होंने इस मौजू पे एक डिबेट का आगाज़ किया है, या यूँ समझिए कि डिस्कशन का आगाज़ किया है। तो वो सिर्फ ज़बानी बातों पे नहीं है, उन्होंने एक डिटेल्ड पेपर लिखा है जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कुछ उन्होंने बयान किए हैं उससे कहीं ज़्यादा उस पेपर में मौजूद हैं कि किसी ने उसके ऊपर मेहनत की है। जो केस बिल्ड किया है वो हक़ाइक़ की बुनियाद पे, या यूँ कह लीजिए कि एदाद व शुमार की बुनियाद पे किया है। माहिर सियासत डॉक्टर इश्तियाक अहमद का कहना था कि यह बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आपको एक नॉर्मल स्टेट बनना पड़ेगा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि अगर 33 सूबे बनते हैं तो पॉलिटिकल वर्कर्स को आगे लाना पड़ेगा और नौजवान नस्ल भी सामने आएगी। ये सारी चीजें जो है हो सकती हैं, ये बिल्कुल मुमकिन है, मगर आपको एक नॉर्मल स्टेट बनना पड़ेगा। और स्टेट इसलिए बनती है कि लोग इंडिविजुअली जो अपने इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लिहाजा आप स्टेट क्रिएट करते हैं। स्टेट का और तो कोई मकसद नहीं है। द स्टेट इज़ देयर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, वी कांट डू इंडिविजुअली, वरना हर बंदा गन लेके अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता रहे। तो इस तरफ मेरे ख्याल आने की ज़रूरत है। एक मेन हमारा यही है, आपने फरमाया कि फैमिली पार्टीज़ हैं। फैमिली पार्टी सर इसीलिए हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक केक है वो इतना छोटा है कि वो आप पकड़ लेते हैं और किसी को आप देने के लिए तैयार नहीं होते। अगर 33 प्रोविंसेस हम बनाते हैं, किसी के 33 बेटे नहीं होने, किसी के 33 भाई नहीं होने, तो पर फोर्स उनको पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी और पॉलिटिकल वर्कर्स को आगे लाना पड़ेगा। और जब पॉलिटिकल वर्कर आगे आएगा तो ये यूथ सामने आएगी। इस मौके पर माहिर कानून अहमद नजीर वड़ैस ने कहा कि नए सूबों का जबरदस्त आइडिया है, लेकिन ये देखना होगा कि इससे अकाइयां कमजोर और विफाक मजबूत होगा तो इसका क्या असर पड़ेगा। I totally agree with Mia Sahib, and I think it's a wonderful idea and time and need of the hour to have this discussion. सिर्फ ये बात है कि ये जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि ऐसे मुल्क में जहाँ पे वफाक की अकाइयाँ आपस में लड़ रही हैं, and we live in an environment where we have faced almost existential threat to the state, वहाँ पे ये जो इससे अकाइयाँ और कमज़ोर हो जाएंगी और वफाक और मजबूत हो जाएगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा गवर्नेंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी है वो वीक इंस्टीट्यूशंस हैं। ये उसकी एक बड़ी मिसाल है कि हर डिपार्टमेंट अपने अंदर बढ़ता जा रहा है, उसकी सर्विस डिलीवरी नहीं बढ़ पा रही। डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ अपनी सैलरी का बजट मिलता है, जो उन्होंने पब्लिक में जाके काम करना है वो तो उनको पैसे ही नहीं मिलते, तो सिर्फ तनख्वाहें उनको सरकार देती है। और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। हम छोटी सी भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन देखें और अगर उसका हम मुस्तकिल एक ऑडिट ना कराते रहें और ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट ना कराते रहें तो हम देखते हैं कि तादाद एम्प्लॉयज़ की
बढ़ती जाती है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का कहना था, वफाक सूबे को कुछ देने के लिए तैयार नहीं और सूबे लोकल गवर्नमेंट को कौमी मिजाज बन गया है कि अपने इख्तियारात को सीने से लगा कर रखना है। नए सूबे बन गए तो सियासी वर्कर्स को आगे लाना ही पड़ेगा। शहर में टमाटर की डिमांड एंड सप्लाई बेहतर ना हो सकी। यौम खपत के मुकाबले में टमाटर की सप्लाई 30% तक कम हो रही है, जिससे मार्केट में टमाटर 350 रुपये से 400 रुपये फी किलो तक बिक रहा है। मकामी फसल आने के बाद ही टमाटर के दाम कम होने की उम्मीद है। लाहौर की मार्केटों में टमाटर की कीमत कंट्रोल न हो सके। टमाटर बादस्तूर 350 से 400 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। हैरान कुन तौर पर सरकारी रेट लिस्ट में दर्जे अव्वल टमाटर 185 रुपए फी किलो मुकर्रर है, लेकिन मार्केट की सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। खरीदार परेशान, कहते हैं टमाटर की कीमत ही कंट्रोल नहीं हो रही। रेट लिस्ट में नर्ख कुछ है, मार्केट में कुछ और। 30-40 से टमाटर 300-350 रुपये हो गया, 800 तक भी गया है। तो ये तो सब्जी भी अब लोगों के लिए खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हुकूमत को इसलिए कंट्रोल करना चाहिए। टमाटर बड़े महंगे हो गए हैं, 600 रुपये किलो टमाटर ने शार्ट हो गई है। सब्जियां बड़ियां महंगी हैं। हुक्मरानों ने यही पैगाम है कि सस्ता कर दो किसी तरीके से। मार्केट कमेटी ज़राए के मुताबिक खपत पूरी करने के लिए टमाटर ईरान से इम्पोर्ट किया जा रहा है। खैरपुर और नवाबशाह का टमाटर आने से कीमतों में खासा रिलीफ मिलेगा। लाहौर की मंडियों में मुकामी फसल नवंबर के पहले हफ्ते तक सप्लाई होगी। सूबे भर के होटल्स और रेस्टोरेंट्स की शामत। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की टैक्स कवानी की खिलाफ वर्जी वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला और साहिवाल में मुतादिद मारूफ होटल्स और फूड चेन्स रेस्टोरेंट्स को जुर्माने किए गए। तर्जुमान रेवेन्यू अथॉरिटी के मुताबिक सार्फिन से पैसे वसूली का रिकॉर्ड जब्त, 60 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए। मुतादिद रेस्टोरेंट्स को IEMS सिस्टम ना लगाने पर नोटिस जारी किए गए। तर्जुमान का कहना है कि टैक्स सिस्टम में जालसाजी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम पर तमाम सेल्स का रिकॉर्ड रखना लाजिम है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बिजनेस कम्युनिटी की आगाही और सहूलियात